Hello everyone, my name is Shubhodipte and you are watching Shubhodipte Pharmacy Tutorials। तो आज हम सेमिस्टर 5 का सब्जेक्ट फार्माकोगनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 का यूनिट 1 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, those metabolites which are directly involved in growth, development and reproduction of plants are called primary metabolites। और secondary metabolites क्या है? Those metabolites which are biosynthesized from a primary metabolite and does not involved in growth and development but act as the defense system for plants are called secondary metabolites। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल्स अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल्स एल्कालॉइड्स, स्टेरॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, ग्लाइकोसाइड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, write a detailed note on सिकिमेट पाथवे। हम सिकिमेट पाथवे को सिकिमिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं। सिकिमेट पाथवे is used in the biosynthesis of aromatic amino acids। एरोमेटिक अमीनो एसिड सिर्फ 3 होता है, ट्रिप्टोफैन, phenylalanine, tyrosine, which is further used in the synthesis of secondary metabolites। सिकिमेट पाथवे का कुछ स्टेप्स है वो हम करते हैं। स्टेप 1, सिकिमेट पाथवे starts with precursors phosphoenol pyruvate and erythrose 4-phosphate which on aldol condensation yields 3-deoxy D-arabino हेप्टुलोजोनेट 7-phosphate जिसका शॉर्ट है DAHP with the help of enzyme DAHP synthase। Step 2, the enzyme 3-dehydroquinone synthase catalyze the cyclization of DAHP to dehydroquinone। Step 3, now on dehydration 3-dehydroquinone gives 3-dehydrosikimate। Step 4, 3-dehydrosikimate gives sikimate with the help of enzyme sikimate dehydrogenase। Step 5, sikimate through phosphorylation gives sikimate 3-phosphate with the help of enzyme sikimate kinase। Step 6, sikimate 3-phosphate and PEP जो क्या था फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। ये फॉस्फोएनोल पाइरुवेट हम कहाँ से पाते हैं ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। गिव्स 3-enol pyruvyl sikimate 5-phosphate with the help of enzyme synthase। Step 7, 3-enol pyruvyl sikimate 5-phosphate gives corismate with the help of enzyme corismate synthase। The formation of corismate is an important branch point in the sikimate pathway as this compound undergoes different types of conversions। Step 8, corismate with the help of enzyme anthranilate synthase gives anthranilate which act as precursor for tryptophan। corismate gives prephenate। ये एक पार्ट है और ये और एक corismate anthranilate उससे tryptophan और ये corismate इस तरह भी जा सकता है जो क्या बनाता है प्रीफिनेट। उसके बाद
prefenate with the help of enzyme corismate mutase. Now this prefenate gives phenyl pyruvate on aromatization with the help of enzyme prefenate dehydratase. Step 11, phenyl pyruvate on transamination gives phenylalanine. Step 12, prefenate gives 4-hydroxyphenyl pyruvate on aromatization with the help of enzyme prefenate dehydrogenase. Step 13, 4-hydroxyphenyl pyruvate gives tyrosine on transamination with the help of enzyme tyrosine aminotransferase. Tyrosine and phenylalanine both as precursor for the biosynthesis of phenyl propanoids, which is used to produce flavonoids, lignin. ये तो हमारा बोलने का है थियोरी, इसका मतलब है और ये है सीकीमेट पाथवे का फ्लो चार्ट। ये सीकीमेट पाथवे इतना बड़ा है, ये तो इजीली रिमेंबर नहीं होता। तो हाँ, एक ट्रिक मैं एक ट्रिक बोलता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद कर लेना ट्रिक के साथ। देखो, सीकीमेट पाथवे हमारा क्या था, प्रिकर्सर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट और एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट। तो हमारा ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कहाँ से आता है, ग्लाइकोलाइसिस से, और ये एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट कहाँ से आता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का शॉर्ट फॉर्म पेप और एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट का शॉर्ट फॉर्म E4P। ठीक है, पेप और E4P का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद कर लेना, एग्जाम में देता है। पेप CH2 डबल बॉन्ड से CO P COOH। यहाँ पर जहाँ पर ही P है उसका मतलब PO3H से है। ठीक है, और एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर CHO CHOH CHOH CH2OP। वो मिलकर क्या बनाता है, DAHP। DHP का हम क्या पढ़े थे, 3-deoxy D-arabino हेप्टुलोजोनेट 7-फॉस्फेट। तो डीऑक्सी का D, एराबिनो का A, हेप्टुलोजोनेट का H और फॉस्फेट का P क्या होता है, DAHP। तो क्या है, तो एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट मिलकर क्या बनाता है, DAHP। DAHP का फुल फॉर्म 3-deoxy D-arabino हेप्टुलोजोनेट 7-फॉस्फेट हो गया। वो क्या बनाता है, DHQ। ये क्या था, 3-dehydroquinate। उससे क्या बनाता है, DHS। वो क्या था, 3-dehydrosikimate। एक बार चेक कर लेते हैं, 3-dehydrosikimate। वो 3-dehydrosikimate क्या बनाता है, सिकिमेट। वो सिकिमेट क्या बनाता है, सिकिमेट 3-फॉस्फेट। वो सिकिमेट 3-फॉस्फेट क्या बनाता है, तो क्या वो सिकिमेट 3-फॉस्फेट क्या बनाता है, 3-एनॉल पाइरुविल सिकिमेट 5-फॉस्फेट। ठीक है, वो क्या बनाता है, कॉरिस्मेट
कॉरिस्मेट जो हमने बोला था एक ब्रांच पॉइंट है, एक तरफ कॉरिस्मेट क्या बनाता है, एंथ्रानिलेट, और वो एंथ्रानिलेट क्या बनाता है, ट्रिप्टोफैन। और एक तरफ कॉरिस्मेट ये क्या बनाता है, प्रीफिनेट। प्रीफिनेट से क्या बनता है, फिनाइल पाइरुवेट। वो फिनाइल पाइरुवेट से क्या बनता है, फिनाइल एलानिन। और एक तरफ 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट, उससे क्या बनता है, टाइरोसिन। ये ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, टाइरोसिन हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही है, और ये 3 ही प्रोड्यूस होता है सिकमेट पाथवे से। तो और ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और ये टाइरोसिन का याद कर लेना, ये स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। हम तो जानते हैं सब अमीनो एसिड का ही होता है, C डबल बॉन्ड OH एक तरफ, NH2 उसका दूसरी तरफ, ऊपर H नीचे R। ये R ही सब अमीनो एसिड का डिफरेंट अमीनो एसिड का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रिप्टोफैन में जो नीचे NH2 है, दाईं तरफ COOH, ऊपर H, और लेफ्ट में है एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग में NH है, और वो किससे जुड़ा है, CH2 बॉन्ड से। यहाँ पर भी देखो फिनाइल एलानिन में C है, उसके दाईं तरफ COOH, उसके एक तरफ NH2H, और वो जो C वो किससे जुड़ा है, CH2 से, और ये CH2 किससे जुड़ा है, एक 6 मेंबर रिंग से। और ये टाइरोसिन को देखो, C एक तरफ COOH और उसकी दूसरी तरफ NH2CH, और वो C किससे जुड़ा है, CH2, और वो CH2 किससे जुड़ा है, एक फिनाइल रिंग से। फिनाइल रिंग में OH जुड़ा है 4 नंबर ग्रुप में, 4 नंबर कार्बन के साथ। ये हो गया। तो पेप और E4 फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, DAHP। उससे क्या बनता है, DHQ। उससे क्या बनता है, DHS। उससे क्या बनता है, S। उससे क्या बनता है, SP। उससे क्या बनता है, 3EP S5P। उससे क्या बनता है, C एक ब्रांच पॉइंट है, उस एक तरफ एंथ्रानिलेट बनता है, A। उससे क्या बनता है, ट्रिप्टोफैन, ट्राई। और दूसरी तरफ प्रीफेनेट भी दो ब्रांच करता है। एक साइड बनाता है PP, फिनाइल पाइरुवेट। फिनाइल पाइरुवेट से बनता है फिनाइल एलानिन, और दूसरी तरफ 4HPP, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट। उससे क्या बनता है, टाइरोसिन। तो हो गया सब। और ये DHP के बाद ही DHQ, उसके बाद DH होगा, ये DHS होगा, उसके बाद S होगा, उसके बाद SP होगा। ये कैसे याद करना है, पहले याद कर लेना। हमारा दो प्रिकर्सर है, एक पेप और एक E4P। उससे क्या बनता है, DAHP। ठीक है। उसके बाद होगा DHQ, क्योंकि A के बाद Q आता है। जो हमारा लेटर से वो अगर हम ऐसे एक के बाद एक सजाए तो A के बाद Q आता है, Q के बाद आता है S। तो हमारा याद हो गया DAHP, उसके बाद DHQ, उसके बाद DHS, उसके बाद क्या होगा, सिर्फ S, उसके बाद क्या होगा, SP, क्योंकि 2 वर्ड है। और
नेक्स्ट तो याद हो जाएगा क्योंकि 3EP S5P है, वो एक बड़ा है, वो तो याद ही हो जाएगा। और सी एक ब्रांच पॉइंट है, वो दो बनाता है, A और P एथाइलेट। और ये क्या क्या था, पीटा प्रेफिनेट। ए बनाता है ट्रिप्टोफैन, प्रेफिनेट बनाता है फिनाइल पाइरुवेट, PP ये और एक तरह 4-HPP, PP बनाता है फिनाइल PA, और 4-HPP बनाता है टाइरोसिन। हो गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एसिटेट पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे। एसिटेट पाथवे इज आल्सो नोन एज HMG CoA reductase pathway और एसिटेट मेवालोनेट पाथवे और टर्पिनॉइड जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रिनॉइड भी पाथवे। ठीक है। एसिडेट पाथवे इज ऑल तो क्या हुआ, एसिडेट पाथवे को हम HMG CoA रिडक्टेस पाथवे भी बोलते हैं, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे भी बोलते हैं, टर्पिनॉइड पाथवे भी बोलते हैं, आइसोप्रिनॉइड पाथवे भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दिया, ये पांच, अगर इसमें से कोई पांच पाथवे का नाम दिया, इसमें से कोई अगर चार ऑप्शन पाथवे का नाम दिया तो याद कर लेना ये एसिडेट पाथवे का ही नाम है, दूसरा नाम है। एसिडेट पाथवे, it is an essential metabolic pathway present in eukaryotes, archaebacteria and some bacteria. This pathway produces two 5-carbon building blocks, isopentyl pyrophosphate जिसका शॉर्ट फॉर्म IPP and dimethyl allyl pyrophosphate जिसका शॉर्ट फॉर्म DMAPP. This pathway is used in the biosynthesis of essential secondary metabolites such as terpenoids and steroids. तो हम एसिटेट पाथवे का सब स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, the precursor for this pathway is acetyl CoA. Acetyl coenzyme which is produced from pyruvate, which is the end product of glycolysis. Two molecules of acetyl CoA forms acetoacetyl-CoA through Claisen condensation. Step 2, acetoacetyl-CoA gives beta-hydroxy beta-methyl glutaryl CoA, जिसका शॉर्ट फॉर्म HMG CoA through aldol addition. Step 3, now HMG CoA on reduction gives mevalonate. Mevalonate gives mevalonate 5-phosphate on ATP mediated phosphorylation. Step 5, mevalonate 5-phosphate gives mevalonate 5-pyrophosphate on ATP mediated phosphorylation. Mevalonate 5-pyrophosphate gives first isoprene unit. Isoprene unit का मतलब 5 कार्बन चेन। 3, तो क्या हुआ, मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट गिव्स फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट, मतलब फर्स्ट 5 कार्बन यूनिट, 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऑन डीकार्बोक्सिलेशन। IPP गिव्स सेकेंड, IPP क्या था, शॉर्ट फॉर्म किसका था, 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का। तो क्या हुआ, स्टेप 7, IPP गिव्स सेकेंड आइसोप्रीन यूनिट डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DMAPP विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, क्योंकि ये IPP और DMAP दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर है। IPP on addition with DMAPP yields geranyl pyrophosphate GPP, which is a 10 carbon with the help of enzyme phenyl transferase, which is the precursor in the synthesis of monoterpenes.
Step 9 IPP on addition with GPP gives farnesyl pyrophosphate FPP. ये IPP कितना कार्बन का था 5 का, GPP कितना का है 10 का, तो 5 और 10 मिलकर क्या बनाएगा 15 कार्बन का स्ट्रक्चर। तो फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट एपीपी कितना कार्बन का है 15 कार्बन C15 यूनिट, which is the precursor in the synthesis of sesquiu terpenes. Step 10 addition of IPP with FPP gives geranyl pyrophosphate GGPP. ये IPP कितना का था 5, FPP कितना का तब बना था 15, तो ये 5 और 15 मिलकर क्या बनाएगा 20 कार्बन का एक चेन बनाएगा। Step 11 addition of IPP with GGPP gives geranyl farnesyl pyrophosphate GFPP. ये कितना का होगा 25, क्योंकि IPP कितना का था 5, GGPP कितने का है 20, तो ये 5 और 20 मिलकर क्या बनाएगा 20 कार्बन का एक चेन बनाएगा, which is the precursor in the synthesis of sesterpins. Step 12 addition of 2 FPP gives C30 यूनिट, क्योंकि FPP कितने का था 15 और 15 मिलकर 30, which is the precursor in the synthesis of triterpenes, which gives triterpenoids squalene. हम triterpenoids का कॉमन नेम क्या है squalene, which is the precursor in the synthesis of steroids. तो ये एक टेबल है जिससे हम ये सब टर्पीन्स ये सब कार्बन रिंग और ये टर्पिन को याद कर सकते हैं, टर्पिनॉइड्स को। और IPP DMPP कितने का कार्बन यूनिट है 5, GPP और मोनोटर्पिन कितने का है 10, FPP कितने का है 15, GGPP कितने का है 20, GFPP कितने का है 25, ट्राइटर्पिन कितने का है मोनोटर्पिन कितने का है 10, तो ट्राई कितने का होगा 10 × 3 30, टेट्राटर्पिन कितने का होगा 40। तो ये तो याद करना इजी है। हाँ, इसके बाद ये फ्लो जो हमारा एसिडल मेबलोनेट पाथवे का चार्ट, इसको ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तो देखो हमारा शुरू का जो है वो एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए कहाँ से आता है पाइरूवेट। पाइरूवेट कहाँ से आता है ग्लाइकोलाइसिस से। तो पहला पाइरूवेट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट। पाइरूवेट से क्या बनता है 2 एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए कितना कार्बन का है 2 कार्बन का। तो अगर हमारा 2 एसिटाइल कोए यूज होता है तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन का। एसिटो एसिटाइल कोए अगर एसिटाइल कोए मिक्स हम अगर एसिटाइल कोए को एसिटो एसिटाइल कोए जो हमारा प्रोडक्ट बना 4 कार्बन का, अगर वो वहाँ पर मिक्स करते हैं तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन का। 4 और 2 6 क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम CoA कोएंजाइम है। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है HMG कोए। ये किसका है हाइड्रोक्सी का, मिथाइल का M, ग्लूटाराइल का G और कोएंजाइम का कोए, ठीक है। उससे क्या बनता है मेवालोनेट। उससे मेवालोनेट से क्या बनता है मेवालोनेट 5 फॉस्फेट। मेवालोनेट 5 फॉस्फेट से क्या बनता है मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट कितना कार्बन का है, यहाँ पर एक भी स्टेप HMG कोए से मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट में एक भी स्टेप में कोई भी कार्बन का चेंज नहीं है।
तो हमारा मेवलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। मेवलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो 6 कार्बन का चेन 6 कार्बन का यूनिट घटकर एक घटकर क्या होगा? कार्बन 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन का यूनिट होगा। तो ये क्या बनता है? 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म आईपीपी। उससे क्या बनता है? आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और रिवर्सिबल रिएक्शन 3 डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म DMAPP। वो भी 5 कार्बन का, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का आइसोमर है। DMAP, डाइमिथाइल का D, डाई का D, मिथाइल का M, एलाइल का A, पायरो का P, फॉस्फेट का P। इस DMAPP में अगर हम IPP में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? एक 10 कार्बन का यूनिट बनेगा GPP। क्या था? जेरानिल पायरोफॉस्फेट। चेक कर लेते हैं। जेरानिल पायरोफॉस्फेट वो कितने का? C10। उस जेरानिल पायरोफॉस्फेट से क्या बनता है? मोनोटर्पिन्स। तो मोनोटर्पिन्स कितने का होगा? 10 कार्बन का। इस पाथवे को याद करने का एक ट्रिक है। पहले याद कर लेना हमारा पहला जहां से ये रिएक्शन शुरू होगा पाथवे, पहला होगा पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट कहाँ से आता है? ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, उस पायरुवेट से क्या होगा? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। और हमारे पायरुवेट से कितना एसिटाइल कोए बनता है? 2। तो 2 एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए 2 कार्बन का, तो मिलकर क्या होगा? 4 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा। 4 कार्बन का कंपाउंड होगा जो एसिटो एसिटाइल कोए। वो एसिटो एसिटाइल कोए अगर एसिटाइल कोए के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाएगा? 4 और 2 6 कार्बन का कोई यूनिट कंपाउंड बनाएगा। और पहला हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड क्या है? जो हमारा एक और दूसरा नाम है पाथवे का, एसिडेट पाथवे का, HMG कोए बनेगा। वो HMG कोए को हम HMG कोए तो शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नाम है। इसका बड़ा नाम क्या है? अगर हम इस नाम को एक्सपेंड करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A। ये HMG को क्या बनाता है? मेवालोनेट। हम एसिडेट पाथवे को भी एसिडेट पाथवे को एसिडेट मेवालोनेट पाथवे भी बोलते हैं। ये भी 6 कार्बन। मेवालोनेट क्या बनाता है? मेवालोनेट 5 फॉस्फेट। मेवालोनेट 5 फॉस्फेट क्या बनाता है? मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। मेवालोनेट यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन अगर होगा तो एक 5 कार्बन का यूनिट बनेगा। वो क्या है? हमारा आइसोप्रीन यूनिट। और उसका नाम क्या है कंपाउंड का? IPP, 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। वो IPP आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? DMAPP, 3 डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। वो IPP के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? GPP, जेरानिल पायरोफॉस्फेट, जो एक 10 कार्बन का यूनिट है। वो किसका प्रिकर्सर है? मोनोटर्पिन्स का। तो मोनोटर्पिन्स कितने का? एक टर्पिन, तो मोनोटर्पिन्स कितना कार्बन का यूनिट है? 10 कार्बन का। तो हमारा एसिडेट मेवालोनेट पाथवे भी हो गया। और इस क्वेश्चन में एक सब पार्ट था,
अमाइनो एसिड पाथवे। क्वेश्चन क्या था? राइट अ डिटेल नोट ऑन एसिडेट पाथवे। हमारा एसिडेट पाथवे हो गया और दूसरा सब पर अमाइनो एसिड पाथवे। तो हम अमाइनो एसिड पाथवे पढ़ते हैं, इसके बाद अमाइनो एसिड पाथवे पढ़ेंगे। ये तो पाथवे है। हम पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, अमाइनो एसिड पाथवे क्या है, उसके बाद हम इस चार्ट में आएंगे। ठीक है। There are total 20 amino acids that is needed in our body. Bacteria and plants synthesize all 20 amino acids, but human cannot synthesize 10 of them. Those amino acids which cannot be synthesized in our body are known as essential amino acids. Those amino acids which can be synthesized in our body are known as non-essential amino acids. तो एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का डेफिनेशन याद करने का एक ट्रिक है। अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो ये ट्रिक याद कर लेना। अगर हमको कोई मेडिसिन, हाँ सपोज करो मैं एक बीपी का पेशेंट हूँ और मेरे घर में शुगर का दवाई है और बीपी का दवाई प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे लिए कौन सा मेडिसिन एसेंशियल होगा? क्योंकि एक बीपी का पेशेंट हूँ, तो एक बीपी का दवाई हमारे लिए एसेंशियल होगा जो हमारे घर में नहीं प्रेजेंट है, उसको हमको बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर बीपी का दवा एसेंशियल अमाइनो एसिड और जो हमारे घर में प्रेजेंट है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें ज़रूरत है पर इस मोमेंट में ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो गया? नॉन एसेंशियल। तो क्या हुआ जी? जो अमाइनो एसिड हमारा बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है लेकिन हमारा बॉडी को उसका ज़रूरत है, तो वो क्या कहलाएगा? एसेंशियल। और जो अमाइनो एसिड हमारा बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हो गया? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो तो हमारा टोटल कितना है? 20। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितना है? 10 और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितना है? 10। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलैलानाइन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने का एक ट्रिक है, वीआईपी हॉल में टीटी। एसेंशियल तो ये ट्रिक को भी याद करने का एक ट्रिक है। एसेंशियल का मतलब क्या है? वीआईपी। तो वीआईपी हॉल में टीटी। ठीक है। वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइलैलानाइन, एच और हो गया वीआईपी का हो गया। हॉल का एच से हिस्टिडीन, ए से अर्जिनिन, एल से ल्यूसीन और एक दूसरा एल से लाइसिन, में एम से मिथियोनिन और टीटी, एक टी से ट्रिप्टोफैन और दूसरा टी से थ्रियोनिन। तो हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने का ट्रिक। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी 10 तरह होता है और इसको याद करने का एक ट्रिक है गैस्पेसिटी। जी, हमारा जो भी अमीनो एसिड्स जी से है वो हम सब लिख लेंगे, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन। ए से एस्पार्टेट और ए से एलानिन, एस्पराजिन, एस से सेरिन हो गया गैस, पी से और पी से प्रोलिन, सी से सिस्टीन और एक टी से टाइरोसिन। तो हमारा ये इस तरह भी 10 हो गया, इस तरह भी 10 हो गया और ट्रिक से याद करने का ट्रिक भी हो गया।
और ये ठीक से याद करने का भी एक जुगाड़ हो गया। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड ही P है, तो हमें याद कैसे होगा कि इस P से क्या है और इस P से क्या है। तो हम VIP फी एक PH कर लेंगे तो याद करने में इजी होगा कि इस P से फिनाइल एलानिन और उस P से प्रोलीन। अगर इस और एक हो गया। और देखो इस एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल है आर्जिनिन, और इस तरफ नॉन एसेंशियल के एग्जांपल है एस्पार्टेट, एलानिन, एस्पराजिन। तो हमें कैसे याद होगा कि किस ए का एग्जांपल याद कर ले। अगर एक तरफ फिनाइल एलानिन है तो उसका दूसरी तरफ उसका दोनों एरोमेटिक एसिड का जो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है और दोनों जो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन है वो दूसरी तरफ होगा। देखो देखो इस ए से तो हम सॉरी ये वो गलत हो गया। तो हमें याद हो जाएगा इस पीएच से फिनाइल और इस पी से प्रोलिन। इस तरह देखो इस ए से आर्जिनिन और इस ए से क्या है एस्पार्टेट, एलानिन, एस्पराजिन। तो इसको याद करने में एक याद कर लेना हॉल, जो हॉल बोला हूँ उस हॉल में ए के पास एक आर लिख लेना तो याद करने में इजी होगा। तो ऐसे इस लेफ्ट टेबल का ए से है आर्जिनिन और उस दूसरे एक ए से, और उस राइट साइड में जो ए है उसका से जो ए स्टार्ट है वो हो जाएगा एस्पार्टेट, एलानिन, एस्पराजिन। ठीक है, तो सब हो गया। और एक टी, यहाँ पर देखो एसेंशियल में 2 टी है, ट्रिप्टोफैन थ्रियोनिन, और एक नॉन एसेंशियल में है टायरोसिन। तो इसको याद करने का एक छोटा सा कर लेना जे फिनाइल से हमारा क्या था वो सीक्वेंस से फिनाइल अगर 4 नंबर फिनाइल में अगर चार नंबर कार्बन में OH ग्रुप ऐड होता है तो टायरोसिन होता है। तो फिनाइलिन, एलानिन और टायरोसिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा। फिनाइलिन नॉन एसेंशियल फिनाइलिन एसेंशियल में और टायरोसिन नॉन एसेंशियल में, और टायरोसिन के अलावा जो भी टी है वो एसेंशियल में होगा। क्या है ट्रिप्टोफैन थ्रियोनिन। तो हो गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को याद करना। अब हम अमीनो एसिड पाथवे पढ़ते हैं। अमीनो एसिड पाथवे तो हमारा स्टार्टिंग क्या है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप से क्या फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज। उसके बाद क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो क्या बना रहा है 3 फॉस्फोग्लिसराइड, वो क्या बना रहा है 3 फॉस्फोएनोल पाइरूवेट, वो क्या बना रहा है पाइरूवेट, पाइरूवेट क्या बना रहा है साइट्रेट, साइट्रेट क्या बना रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या बना रहा है ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, तो हमारा सब जो भी प्रेजेंट है वो हो गया। इस साइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ऑक्सैलो एसीटेट, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये जो भी प्रेजेंट है ग्लूकोज वो 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का, 3 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोएनोल पाइरूवेट 3 पाइरूवेट 3 साइट्रेट कितने का है 6। ठीक है,
वो 6 जो साइट है वो क्या बनाता है, अल्फा कीटोक्लोराइड, वो क्या है 5 कार्बन का। उससे क्या बनता है, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन, आर्जिनिन। ठीक है, ग्लूटामेट भी 5 कार्बन का, ग्लूटामीन भी 5 कार्बन का, प्रोलीन भी 5 कार्बन का, और सिर्फ आर्जिनिन 6 कार्बन का। ठीक है, फिर वो अल्फा कीटोक्लोराइड से क्या बनता है, ऑक्सैलिक एसिड। वो ऑक्सैलिक एसिड क्या बनाता है, एस्पार्टेट, एस्पाराजीन, थ्रियोनीन, मिथियोनीन, लाइसिन। ऑक्सैलिक एसिड कितना कार्बन का था, 4 कार्बन का। एस्पार्टेट कितना का है, 4, एस्पाराजीन 4, थ्रियोनीन 4, मिथियोनीन 5 और लाइसिन 6। फिर यहाँ यहाँ आ जाओ, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से क्या बनता है, यानी इसमें से क्या बनता है, एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट जो एक 4 कार्बन का है। एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सिकिमेट पाथवे का प्रिकर्सर है। उससे क्या बनता है, ट्रिप्टो, हाँ हमने पहले ही पढ़ा था, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन, टाइरोसिन। तो हमें ये याद हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन और टाइरोसिन कहाँ से बनता है, सिकिमेट से। सिकिमेट का सिकिमेट पाथवे का प्रिकर्सर कौन है, एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट कहाँ से बनता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। ठीक है, और एक दूसरी तरफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या क्या बनाता है, राइबोस 5 फॉस्फेट, वो एक 5 कार्बन का है। वो क्या बनाता है, हिस्टिडीन। उससे क्या बनता है, सेरीन। सेरीन से क्या बनता है, ग्लाइसिन, सिस्टीन। तो हमारा पूरा ये जो पाथवे है, अमीनो एसिड पाथवे, इसको याद करने का ट्रिक ट्रिक तो नहीं है, पर एक इजी मेथड है। एक तरफ तो हमारा याद हो जाएगा, सिकिमेट पाथवे से ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन, टायरोसिन होता है। और ऑक्सैलिक एसिड से क्या बनता है, सभी 4 कार्बन का अमीनो एसिड बनता है, एस्पार्टेट, आर्जिन, एस्पार्टेट, एस्पाराजीन, थ्रियोनीन, मिथियोनीन, लाइसिन। और अल्फा कीटोक्लोराइड से क्या बनता है, सब जी बनता है, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन, आर्जिनिन। और यहाँ पर देखो, ये पाइरुवेट से क्या बनता है, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो देखो यहाँ पर 3, यहाँ सिकिमेट पाथवे का 3, ऑक्सैलिक एसिड का 5, अल्फा ग्लूटाइड का 4, ये पाइरुवेट से जो बनता है 4, और दूसरी तरफ वो राइबोस 5 फॉस्फेट से जो बनता है वो वहां पर भी 4। तो कितना हुआ, 3 5 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो 20 अमीनो एसिड बन गया। ठीक है, इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक मेथड है। जो सिकिमेट पाथवे का 3 है वो तो याद हो जाएगा। पाइरुवेट से जो बनता है सब सभी इन बनेगा। और इन कहाँ पर है, वैलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन, और ल्यूसिन का एक आइसोमेर आइसोल्यूसिन, तो एक हो गया। और जो ऊपर है यहाँ पर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ये देखो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, इसको इसको रट्टा ही मानना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड पाथवे हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्रेशर टेक्निक। और इस अगर क्वेश्चन में अगर थोड़ा तो अगर क्वेश्चन पर टफ किया तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी प्रेजेंट तो ये क्वेश्चन इस तरह ही प्रेजेंट हो सकता है कि राइट अबाउट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स
in investigation of biogenetic pathway. तो हम करते हैं ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, जो हम 3 पढ़े उस पाथवे से, ठीक है। ट्रेसर टेक्निक कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक विच यूटिलाइजेज अ लेवल compound to trace the various intermediates and steps involved in biosynthetic pathways in plants at given rate and time for biogenetic studies. बायोजेनिक स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन लिविंग बींग्स। तो क्या हुआ? ट्रेसर टेक्निक एक टेक्निक है जिसमें हम एक लेवल कंपाउंड को यूटिलाइज करते हैं फाइंड करने के लिए वेरियस इंटरमीडिएट्स और स्टेप्स को बायोसिंथेटिक पाथवे में एक गिवन रेट और टाइम के अंदर, किसके लिए? बायोजेनेटिक स्टडीज के लिए। फॉर प्रोटीन, अमीनो एसिड, एल्कलॉइड्स, नाइट्रोजन एटम्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स। For glycosides, carbon, nitrogen, oxygen, sulfur atoms are used as tracers. For terpenoids, oxygen atoms are used as tracers. Steps involved in tracer technique, यहाँ पर 4 स्टेप्स है, ठीक है। पहला प्रिपरेशन ऑफ लेवल कंपाउंड, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेवल कंपाउंड, तीसरा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेवल कंपाउंड, चौथा डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट्स इन वेरियस बायोकेमिकल फ्रैक्शंस। पहले हम प्रिपेयर करेंगे लेवल कंपाउंड को, उसके बाद क्या करेंगे? लेवल कंपाउंड को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उस लेवल कंपाउंड को हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट करके एक आइसोलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी हमारा मेटाबोलाइट है उसका नेचर, जो भी हमारा मेटाबोलाइट उस बायोकेमिकल पाथवे में फॉर्म हुआ, उसका नेचर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। पहला प्रिपरेशन ऑफ लेवल कंपाउंड। लेवल कंपाउंड्स में बी प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू बॉम्बार्डिंग और बाय यूज ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। चूज दोस आइसोटोप्स विच हैव लॉन्ग हाफ लाइफ, ठीक है। दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेवल कंपाउंड। आफ्टर प्रिपरेशन वी हैव टू एडमिनिस्टर इनटू प्लांट्स, और इस एडमिनिस्टर 4 तरफ होता है, 4 टाइप का होता है। पहला रूट फीडिंग, इन केस वाइल्ड रूट्स आर साइट्स ऑफ बायोसिंथेसिस, एग्जांपल टोबैको। दूसरा स्टेम फीडिंग, इन दिस लेवल कंपाउंड्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द कट एंड ऑफ स्टेम इमर्स्ड इन सॉल्यूशन। तीसरा डायरेक्ट इंजेक्शन, इन दिस लेवल कंपाउंड्स solution is injected in plants with hollow stem, example opium. Spraying technique, in this level compounds are being absorbed after being sprayed on leaves. तो हमारा 4 टाइप का इनकॉर्पोरेशन टेक्निक हो गया। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कंपाउंड becomes a part of metabolic pathway and undergoes reaction characteristic. एडमिनिस्ट्रेशन, एक लेवल कंपाउंड सपोज कर लो X, उसको हम प्रिपेयर करें, उसके बाद हम एडमिनिस्टर करें। एडमिनिस्टर के बाद वो X सपोज करो सिकिमेट पाथवे में एंटर कर लिया। वो सिकिमेट पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफैन, फिनाइल और क्या था? टायरोसिन। उसके बाद वहाँ पर एक लेवल कंपाउंड का ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? अंडरगोज रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। रिएक्शन का तरफ जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसका तरफ ही उस लेवल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तीसरा step, separation and isolation of level compound. After radioactive tracers are used in biogenetic studies, its separation and isolation is essential. Different methods are used depending on nature of drugs and its source. चौथा determination of nature of metabolites in various biochemical fractions. Depending upon the nature of isotopes, various instruments are used to determine the chemical nature of intermediate
and final product for their isotopes. Example: Geiger-Müller counter, scintillation counter, ionization chamber, mass spectrophotometer, nuclear magnetic resonance, NMR, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NMR स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमारा 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 फार्माकोगनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 का हो गया। तो आज का वीडियो का हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप एक लाइक कर देना, और बहुत ही अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय, हैव अ नाइस डे।